अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उसामा अमजद और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा इदरीस, जैनब असद जंजवा एंड अफरोज. We all are MPhil students doing our degree in mass communication from Foreman Christians College. And today our guest is very special, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. पंजाब से एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पैनल डिस्कशन. And the motive of our panel discussion is obviously about education. And when it comes to the education system of Punjab, it considered to be a good education system as compared to the other provinces. But still there are so many gaps, there are so many areas which needs to be discussed. So that's why we are here. जी सर. अच्छा सर, आपने माशाल्लाह गवर्नमेंट में चार्ज संभाला, गवर्नमेंट आई. ये मौजूदा गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज क्या हैं जो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आने जा रही हैं? To begin with, thank you very much for giving me the opportunity. But to begin with the vision and the strategy and the execution plan and then short-term, long-term goals के करना क्या है, किस टाइम पे करना है, कितनी देर में करना है. ये थोड़ी लंबी तकरीरें हो गई, हर 5 साल बाद की तालीमी इंकलाब ले आएंगे, बजट बढ़ा दें और but what relevant part. So the priorities, of course, were out of school children, which is a very big number and very terrifying. But they have never been mapped. किस जिले में कितने हैं, किस तहसील में कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, कैसे उन्हें लाना है, एक्सेस की टर्म्स में क्या चाहिए और बाकी सारी चीज़ों में. तो मैपिंग them. So we're doing the first private school census. We mapped all of government schools. So there is an app which is already been launched, but we've integrated it to a level in real time where you know the number of students in any school across. So the landscape is 48,000 schools, 3.5 लाख टीचर, टोटल 5 लाख HR का साइज. पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब है. करीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स और 32,000 and 48,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं. और basically we just have computer labs in 8,000, which is also something which we should not be proud of. But हमने आते ही एड्रेस की हैं फेक एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा massively. Curriculum पे हम so basically I also do believe कि engagement is very very important. So asking the right people on how it should look like and then getting the right people for the right job. So I as education minister can be a very good administrator, a spokesperson, and have my ideas in education and the experience maybe at some point. But I'm not an expert in curriculum. I cannot make the syllabus. I'm not an expert on examinations. I am not an expert on textbook printing. So you need the right people, and bringing them on board for the first time ever is one of the major policies. And then foundation learning, accelerated learning, inclusivity, major key components, female education, and addressing that very specifically, target oriented. These are the basic priorities of the government. And malnutrition, we're trying to find a formula where we can, in an affordable cost, give some sort of nutrition to the kids in primary schools at least, because that's when your brain and your body is growing the first 1,500 days precisely. तो इस तरह के इनिशिएटिव पे काम हो रहा है. क्लाइमेट चेंज करिकुलम में आ रही है, रोबोट्रॉनिक्स, कोडिंग, पाइथन स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं, करिकुलम में ला रहे हैं. स्किल्स आफ्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली फैसिलिटी शुरू कर दी है, मॉडल टाउन गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज, and they're training 6,000 kids this year, bringing in Google, ERP, digitization, a lot of things that the world is doing and we're not doing. It's about to do that. That's the right time. Sir, you are really doing very well. अगर करिकुलम की बात आती है, सिंगल नेशनल करिकुलम की, आई हैव सर्व अ लॉट इन पब्लिकेशन सेक्टर्स. तो मैंने खुद से देखा है, व्हेन इट कम्स टू द सिंगल नेशनल करिकुलम, इट्स अ गुड थिंग कि आप पूरी कौम को आप एक सिंगल नेशनल करिकुलम में ले आए, एक यकसा कौमी निसाब में ले आए. लेकिन मैं उसके साथ समझता हूँ स्टिल देयर आर सो मैनी गैप्स हमारे करिकुलम में. ऐसी वो जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया जो हमारी PTB की बुक्स हैं. और इसके अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में देखा जाता है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स.
बट बल्कि वो इसको भी अपडेट उन्होंने कर दिया है, और वो अपडेट होकर उसमें उन्होंने रोबोटिक्स को भी ले आए हैं. Okay, so STEAM is very important, and we are in the process of introducing intertech and metric tech and middle tech. So you can actually have your degrees in technology as well as foundation learning camps in South Punjab in this summer only. And then when you talk about sciences, then you have to talk about the whole system of practicals and the availability of science labs and the availability of computers. And if you have the computers, then you have to check on the availability and the capacity of the teachers. So single national curriculum में आप कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, अक्सर कौमी निसाब होना चाहिए, बट शायद टीचर से भी पूछ लेते कि आप ये पढ़ा सकेंगे, और देख लेते कि दुनिया, अगर आप ग्रेड 8 में बच्चों को CD ROM पढ़ा रहे हैं, तो शायद बनाते हुए सोच लेते कि तो दुनिया में बनना बंद हो गया. सर बिल्कुल. तो बट मैं खामखा में मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि यू जस्ट टर्न डाउन समथिंग व्हिच इज मेड बाय योर ओपोनेंट. उसमें से अच्छी चीजें बाहर क्या जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए, बट देन इंट्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर्स. सो आई हैव अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स. इट डज नॉट मीन आई एम अ गुड इकोनॉमिक्स टीचर. I cannot go and just teach economics because I have a degree in economics. I have to be a certified teacher because it's about how you make the small children learn, how they learn, how are you supposed to teach them, what translates, what is more effective. So we're working on that as well. But basically, like I said, it is a job that should be done by the top people within the private and government sector, and we get them on board so they can make our policies and curriculum and syllabus and exams and textbooks and syllabus and teachers training and teachers certification, teachers manuals, and then introducing subjects like climate change, electronics. सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब एजुकेशनल स्टाफ की हायरिंग करते हैं तो आप किस बेस पे करते हैं? लाइक वो किसी NTS टेस्ट के थ्रू जाते हैं या PPSC के थ्रू या कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है? लाइक आप उनकी सर्टिफिकेशंस कैसे चेक करते हैं? और ये भी प्रॉब्लम है कि रैंडम लोग जो होते हैं आप उनको बड़ी बड़ी जॉब्स दे देते हैं जिसकी वजह चीटिंग जैसे प्रॉब्लम होते हैं और इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, पेपर लीक वगैरह हो जाता है. तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं और कैसे उनका हायरिंग प्रोसेस करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ना गिरे? तो वो ट्रांसलेशन. Excellent question जी. ये मैं exactly where you sitting here, right? 5th day जब मैंने चार्ज लिया तो मैं आई केम एंड मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि देयर इज पेरेंट्स कमिंग टू मी जब मैं गाँव जाता हूँ कि हमारे बच्चे हमारे से पैसे मांग रहे हैं कि टीचर को देने एग्जाम के. दिस कैन नॉट हैपन. तो मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की स्क्रीनशॉट्स आने लग गई, पेपर्स पे सेल किसी को चाहिए हमें. एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट कि अगर आपने इन्विजिलेटर को सही अपॉइंट ही नहीं किया तो उसे काम सही कैसे एक्सपेक्ट कर. माली की जगह चौकीदार लगा हुआ है, चौकीदार की जगह मास्टर्स वाला लगा हुआ है, मास्टर्स डिग्री के अंदर सिफारिशी जाली डिग्री वाला लगा हुआ है. बट एनी वे थ्रू टेक्नोलॉजी हमने एहसास सेंटर ढूंढे, क्रैकडाउन किए, तो हमने 80% कंट्रोल कर लिया. बट देन अगेन इन लाइक यू सेड फ्यूचर, artificial intelligence, facial recognition, 10 thumbprints, cameras, job done. Human intervention को जीरो करें बिकॉज हम एज ए सोसाइटी गलत चीज़ों में एंगेज हैं, और जहाँ मौका देते हैं अपना हाथ लगाने का उसके साथ कुछ पैसे चाहिए, कुछ सिफारिश चाहिए. सो लेट टेक्नोलॉजी डू द जस्टिस बिकॉज द वर्ल्ड इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. और टीचर्स रिक्रूटमेंट हमने अभी नहीं की, बट जितनी रिक्रूटमेंट करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने थ्रू NTS की, कुछ सीनियर ग्रेड 17 में बाद PPSC भी आते हैं कॉलेजेस में अदरवाइज, बट सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग, सो B.Ed एज अ डिग्री शहबाज शरीफ साहब ने हायर किया, MIT एज अ डिग्री ने हायर किया, बट सबको टीचिंग डिग्री के साथ आना चाहिए. और अगर नहीं है तो टीचर सर्टिफिकेशन. सो एक टेस्ट जो शहजाद रॉय ने ट्राई किया इन कराची, द पब्लिक सेक्टर टीचर्स 83% फेल्ड. And they have good degrees and they are doing excellent work. Mind you, public sector में कुछ ऐसी females कमाल काम कर रही हैं that I would love to tell you. You should check out FICA की diary. You should check out Rabia Basri and DT Punjab and a few pages who are teaching and inspiring. But the problem is कि ना सही बंदा certified appoint हो रहा है,
और अगर वो ट्रांसलेट नहीं करता रिजल्ट्स में, लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं होते। एग्जैक्टली। और फिर ट्रेनिंग्स हो रही हैं हर साल के साल, बट ये नहीं देख रहे कि उन ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। So we are actually going to be only hiring teachers with certified classes. That really has to be certified teacher. Also on एक ये भी concept है कि सरकारी टीचर भर्ती हो जाओ, सारी जिंदगी टीचर ही हो। That the world doesn't work like this. Private sector, FC college probably was not working like this either. You have to give appreciation to the good teachers, and if the teacher is not coming to school the entire year, you cannot give them the salary. I'm Yes. sorry. This is taxpayers' money. You have to be very cautious about it. So we are in the process of forming PECTA, which is going to be looking at the curriculum and teachers training and teachers manuals and teachers certifications and teachers guides, and then also in the process of making the academic calendar, because teachers go sans speech. In the government sector, the teachers are done, they tell them to do polio duties and ATA duties, and so no, it's their time. So that is basically what my सर मेरा इसी पे फॉलोअप क्वेश्चन है आपसे। रिसेंटली आपको पता होगा बोर्ड एग्जामिनेशंस अभी हुए हैं एंड यू वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कैचिंग चीटिंग माफियाज व्हिच आई मस्ट से इज़ अ रिमार्केबल थिंग। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने उन इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया है एंड व्हाट डू यू थिंक किस टाइप की हमें स्ट्रैटेजीज वगैरह इंप्लीमेंट करवानी चाहिए जिससे वी कैन एंड दिस साइकिल वंस एंड फॉर ऑल। So this actually has two components. Thank you very much for the appreciation. But number one is the mindset. So you will be amazed to know the amount of requests I get कि मेरे बच्चे के नंबर लगवाओ। As a society आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने अपनी बेटी का भी LGS में एडमिशन कराना था। I just went straight. I told her to give the test. As a normal citizen, not like as a minister's daughter. And if she passes, she'll be eligible to go. Because आपने उस बच्चे की जिंदगी बनानी है, गंवानी नहीं। True. एंड देन अगेन कमिंग टू टेक्नोलॉजी, आप देखें कि आज के टाइम पे आपके अगर इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे नहीं और आपके सेंटर्स हजारों की तादाद में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं उनकी लॉजिस्टिक्स, फिर देन अगेन कमिंग टू उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी हायरिंग, वो सारी चीजें और हर डिफरेंट गवर्नमेंट ने ये काम किए। सो वी आर बीइंग विजिलेंट। हमने सारे जो 7 सेंटर्स में हमने कैमरास लगा के से डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छा किया। बट व्हाट इफ आई वाज नॉट द मिनिस्टर? पिछले साल भी तो यही हो रहा था, उससे पिछले साल भी तो अब से कुछ चलता आ रही है। सो इट हैज टू बी द इंस्टीट्यूशन। सो सारे बोर्ड्स को भी हम टॉप लोगों को ला रहे हैं, टॉप लोग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, एग्जाम्स अच्छे कराते हैं, जिनकी जॉब एग्जाम्स करा। ये एक बड़ा जरूरी कंपोनेंट है कि आपको भी लाइकिंग डिसलाइकिंग ज्यादा, इवन दो इट इज मैं अपना वो कर रहा हूँ राइट, वरना मेरा जैसे दिल करे लोहा बोर्ड का चेयरमैन बनाऊं, मुल्तान का बनाऊं, बट दिस इज नॉट हाउ, आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर because at 37 years, honestly, first time member of the provincial assembly directly to Minister of Education, I want to pay back as a youngster of this country, and I'm very optimistic that by the next year, inshallah, I would invite you to please ask me the same question. Sure. And then the second component is practicals. जिसने प्रैक्टिकल करने वो मेरा मुंडे ने नंबर लगा दिए प्रैक्टिकल में, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन, इट इज नॉट नाउ। मैं जब यूनिवर्सिटी गया था मैं तो मैं यही सुन रहा था 2009 में आया तो भी ये सुन रहा था, मतलब 2024 में आपको ये सोचना है कि इसका हल क्या है। तो मैं जिस स्कूल में था मुझे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते थे 25, मुझे फाइनल एग्जाम में 5 ऐड कर देते थे, 5 MCQ में, 10 असेसमेंट्स में, 5 जो है मेरा मिड टर्म था, कहानी खत्म। So that's what you need to do here. चीटें खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिकल जरूर कराएं जो अगेंस्ट नंबर ना दें। So दोनों एंगल्स नेक्स्ट ईयर will be 100% addressed. Okay, so my question is that कि हमारा जो एजुकेशन का बजट है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स वो कम होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं होगा तो एज अ नेशन हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। देखिए इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक, if you talk in terms of what the world is spending as a percentage of their GDP, ideally 4, minimum 3, yes, we should be at 1 point something, but as the volume of the figure 500 अरब रुपए है। जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो let's say $2 to $2 billion हर साल। तो डिपेंड ये भी करता है कि आप यूटिलाइज बजट इतनी इंक्रीज कर रहे हैं
बट वो बजट सही जगह लागू ना रहा। तो पहले परफॉर्मेंस ऑडिट्स कराएं, हर साल के टारगेट्स बनाएं, उन्हें देखें, उन्हें अचीव करें, क्यों अचीव नहीं हुए। इस समय में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का आगे तकरीरें तो सब 76 साल से कर रहे हैं, आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि किधर इन्हें मैप कर लेते। कितना मुश्किल है एक बच्चे को ढूंढना। इफ आई वांट टू फाइंड यू इन टुडेज वर्ल्ड, आई कैन फाइंड यू। लेट्स फाइंड यू एंड आस्क यू व्हाट योर प्रॉब्लम इज, व्हाई यू नॉट कमिंग टू दिस स्कूल। So very very relevant question, and I think I have given, that is my opinion and my policy on this. And I also want to, so there's a lot of things that you can do. I'm 37 and I have the urge that the education in Punjab, and that's what the Honorable Chief Minister also told me, should be at the same level, that I don't have to go drop my kid to a private school in the morning and be the minister for the public school. That is hypocrisy. I do believe that. But then again, it is a counter argument is it is not the child's fault that he was born to the minister's house. So he has to go suffer, or she has to go suffer in a public school, because public school mein filhal halat mein अच्छे हैं नहीं. But ideally, I think it is an opportunity, and I inshallah expect that by next year, this issue precisely would have been addressed in a far better way. और जरूरी नहीं है कि बजट, जिस तरह मैंने आपको आगे बढ़ाने से, सो एक कमरा 45 लाख का बनता था, टेक्निकली वो 10 लाख का बनना चाहिए। वो 45 का बनता है उन सारे अंसरों की वजह से, जिस वजह से मुल्क डूब रहा है। अब हम 10 लाख का बनाएंगे। We've said thank you to them and we've engaged the community, so we want to make a room in her village, in his village, for example. So we tell him that you're a kind man, okay, so you and the headmaster try to construct a room within the same budget. इससे क्या होगा कि आप एक ही जगह 4 कमरे बना रहे हैं। आपने बजट 4 टाइम्स यूटिलाइज कर लिया थ्रू वन सिंपल पॉलिसी, द स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, बिकॉज निकालें बिल्डिंग डिपार्टमेंट, CNW, बिकॉज उनका काम हाईवेज बनाना था। उनका क्या काम है राजनपुर में स्कूल का कमरा बनाए, एंड वी डोंट नीड बिग आर्किटेक्चर एनीवे, बिकॉज हम आईफिल टावर तो बना नहीं रहे। स्कूल्स इज अबाउट 2 रूम्स 4 रूम्स, गाँव में रोज बनते हैं। दिस रूटीन मैटर्स, जस्ट गिव देम द स्पेसिफिकेशंस। और इसी तरह टीचर्स रिक्रूटमेंट में, लाइक आई सेड, सबको बराबर तनख्वाह मिल रही है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, उसके अंदर कुछ सिस्टम लाए। नॉट परफॉर्मिंग शुड नॉट बी यूजिंग द टैक्स पेयर्स मनी, ये मेरे पैसे नहीं है इस कॉम के। तो जो स्मार्ट पॉलिसीज एंड स्मार्ट रिफॉर्म्स, वी आर एक्चुअली सेविंग ओवर 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज दिस। Ideally, we would want to go to 4 GDP percentage wise, 4, which is ideal situation. Okay, sir, when it comes to the literacy rate, it's still very low. और उसकी एक ख़ास वजह जो ये है कि हमने एक एजुकेशन सेक्टर को हमने बिजनेस बना दिया है। हमने उसको उस तरह से लेकर नहीं चल पाए, अनफॉर्चुनेटली, ऐसा ये अलमिया है। और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका बात ये है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो एक तो कम हैं, और क्या इसका नाम है, उन पे उस तरह की यानी फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह प्राइवेट इदारों को हासिल हैं। क्या इन फ्यूचर हम अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हम में रिफॉर्म्स लाते, क्या इन फ्यूचर हम अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स आते हुए देख रहे हैं? सर देखें, मसले का हल ही है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। प्राइवेट स्कूल वाले मर्जी की फीसें लेते हैं बिकॉज उन्हें पता है सरकारी स्कूल तो पढ़ा नहीं रहे अच्छा। When we start performing, they are here, we are here. When we start performing, हमने तो free education देनी है, 25A कहता है कि free quality education is the right of every child from 5 to 16. और हम जब यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ पे आएंगे ना, उनका मॉडल है हर बच्चे से फीस लेना, तो आपसे। और जब ये 4 मेरी पब्लिक सेक्टर स्कूलिंग में आ जाएंगे और आगे बाद 3 रह जाएंगे, इस when you start worrying. मेहनत करें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेस करें, ये सारे मसले हल। When you start trusting the public sector schooling, आपको प्राइवेट स्कूल्स के इश्यूज नहीं रहेंगे, वो आपकी मिलते भी करेंगे, वो आपको फ्री स्कूल बस भी भेजेंगे कि प्लीज बच्चा दाखिल करा दें, बिकॉज उन्हें तो उनका तो मॉडल ये है। बट यू शुड ऑल्सो एडमिट के देखें जितने बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उतने प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो ना होता तो क्या होता। इस वजह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है, बट कई इदारे, आप सही कह रहे हैं, मर्जी की फीसें, किताबें भी यहाँ से लो, यूनिफॉर्म भी यहाँ से लो, पानी की पीने का पानी भी यहाँ से लो, मतलब वो इट इज बिकम जोक्स। उन सब के लिए यही तरीका है, रेज योर स्टैंडर्ड। ऑनेस्टली
20-25% भी फर्क पड़ जाएगा ना, पता चलना चाहिए। दैट इज माय आइडियल सिचुएशन। And sir, as you know, transgender exists in our society, और इस पे ट्रांसजेंडर को के लिए काफ़ी उनकी राइट्स में काम होना बाकी है। हमने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ही डिड अ लॉट फॉर देयर राइट्स। he opened the schools for them in particularly Lahore, DI Khan and Multan. Do we see more schools in Punjab for them? We're continuing the program for the transgenders, and we're making more schools, not only for transgenders but differently able kids. So we're making 36 autism schools for differently able kids in every district, and then we're introducing the center of excellence. So I think inclusivity again is very important. Be it the minorities, be it those segments of the society which are being ignored, and I do. Myself personally, I'm very sensitive to them, and we are in the process of continuing and extending those programs, because it is also another segment of the society where you have to find formulas that suit them. और सर So ये काफ़ी ट्रांसजेंडर के जो उस्ताद हैं उन्हें भी आपको साथ जिन्होंने रखा संभाला, उन्हें भी कुछ कैश इंसेंटिव देना पड़ता है, फिर टाइमिंग ऑल्टरेशंस वैसे, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसमें, ये विच इज़ वेरी हाई कॉस्ट, बट yes, it is the right to education, and we will make sure that we expand that program and take it forward. Along with, I want every kid in the public sector schools to immediately plant a tree, take care of it for the next 10 years, 7 years, 3 years remaining, and then by the time they go out of the public sector schools, that tree will pay the entire costing of the education and more, and make Lahore, Punjab, Pakistan a much greener, sustainable, better place in terms of air quality index and climate change. सर, जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज का आपने जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज जो है एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, उस तरह से लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। क्या आप समझते हैं क्लाइमेट चेंज को हमें अपने निसाब में एंटर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सर, हम इस पे ऑलरेडी एक्सटेंसिव काम कर चुके हैं, और बिल्कुल यस, इट इज द नीड ऑफ द आवर। उस बच्चे को ये जिम्मेदारी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसने जिस हवा में सांस लेना है उसका राइट है, उसे पता हो कि वो कैसे ठीक होगी। एंड देन इवन बेसिक एथिक्स लाइक बड़ों की इज्जत करना, गाड़ी लेफ्ट पे पार्क करना, ऊंची आवाज में ना बोलना, बदतमीजी ना करना, which is a very important component of making a society, and we're lacking there, and technology, and along with it the climate change, and I think skills is very important. So maybe digital skills to other skills, but starts teaching skills in school, so that people who are working on a auto rickshaw shop, or a bicycle shop to learn that, or a stitching darzi that matter, they can also come to the normal schooling system, and maybe take 4 classes of normal classes and 3 classes for stitching, so you can learn, and the parents will be more inclined, because they will know कि 1 साल बाद ये कमाने की लग जाएगी। How do school children address करने का भी बड़ा टॉपिक। Last question, and it's really concerning because we are all victim to it. तो सर, जैसे आप देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से इतना पैसा लगा के पढ़ के निकलते हैं, और सर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है आगे। इवन द डॉक्टर्स, इंजीनियर, देयर परस्यूइंग CSS एंड ऑल दैट स्टफ। तो सर ऐसे क्या मतलब कमी है हमारी एजुकेशनल सिस्टम में कि हमें ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन अनपेड इंटर्नशिप्स ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि हमें वो जरूरत नहीं पैदा करते कि हम अच्छी जॉब्स की तलाश करें। वी हैव लाइक 2 ऑप्शंस, आइदर परस्यू CSS, बी गो इनटू बिजनेस, और गो अब्रॉड। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की क्या कमी है कि वो हमें इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती जो हमें प्रैक्टिकली हेल्प करे। Really understand that, and the more sadder part is, the saddest actually, कि फिर उनकी शादी कर देते हैं तो हस्बैंड कहते हैं आप जॉब नहीं कर सकते, मदर इन लॉ कहती है ना 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 ना, तो फादर इन लॉ कहते हैं तो हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। तो वो जो सारी डिग्री और वो पैसे, yes it is important, because you will still be a good mother and a good daughter, and raise your kids well, but you need to contribute to the society, which is the most important component, I think. So I say, मेरा ख्याल है, देखें, as a ideally तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज, बिकॉज तालीम जो है ना, इस पे मेरा ख्याल है कि हमें सबको बैठना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने जो किया और वो मुझे पसंद नहीं था, और वो सही इस डायरेक्शन में होगा, लाइक यू सेड कि आपने
बच्चियों को अब ACCA करने लगे सब, तो सभी करने लग गए. Yes, sir. So it is the government's job to tell them कि दुनिया में डिमांड क्या है. And the world wants digital skills or an artificial intelligence engineer or a robotronics engineer or somebody or a data analyst or a data engineer. There is thousands of degrees just in the computer or IT sector. And you talk about others, and there's translators in the world. So दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस चीज़ की शॉर्टेज है और मुल्क में जिस चीज़ की शॉर्टेज है, फॉर एग्जांपल नर्सेज are more valued than doctors now. Anesthesia specialists are better paid than doctors now. Because हुआ ये कि पहले 18,000 डॉक्टर बनाते थे, आपने फिर सुपीरियर को भी लाइसेंस दे दिया, आपने पंजाब को भी दे दिया, आपने लीड्स को भी दे दिया, जिसने अस्पताल बनाया उसने साथ ये भी बना लिया. सो लाइक यू सेड, तालीम तो फिर बिक रही है. मैं नॉट नाउ 2010 में एक बड़ी I cannot take the name now because then again I feel कि वो responsibility जो है फिक्स नहीं होनी चाहिए. बट सैडली मैं अपने कज़न के साथ एक यूनिवर्सिटी में गया, उनके कॉलेज के उन्हें फ्रेंचाइज चाहिए था, तो उन्होंने कहा सर आपके पास इतने पैसे हैं. मैंने सोचा इसने ये नहीं पूछा कि पढ़ाओगे कैसे, क्या पढ़ाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फैकल्टी लेके आओगे, कहाँ से टीचर्स लाओगे, डिसिप्लिन कौन से ऐड करने हैं. मतलब जो यूनिवर्सिटी वाले के क्वेश्चन होते हैं सारी दुनिया में. तो इसलिए बड़ा बड़ा सैड पार्ट है कि वो हमें उसके लिए उस तरफ जाना है जहाँ दुनिया जाए. इसका सबसे हम स्कूल्स के अंदर, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द स्कूल्स मोस्टली, हम करियर गाइड्स और काउंसलर्स दोनों ला. So I got a scholarship in SAT. A few of my friends studied for free in the US with SAT, but SAT GMAT का पब्लिक सेक्टर स्कूल के बच्चे को तो पता ही नहीं. तब तक एकदम सर पे आगे लगती है कि नस्ट जाना, अच्छा एक एग्जाम भी देना हो, फिर वो बोलता है पता करता अकेडमीज का. It is our job to tell them that if you want to get there, this is what you have to do, and to tell a doctor that it is not 5 years but 9 years until you will start earning, and put people doing mass comm, telling them that this is what the condition of the ones who are senior to you is. And then there is avenues. So value addition. Mass comm कर लिया ठीक है, अब वो तो हो गया, उसमें value addition क्या करनी है जो दुनिया करनी चाहिए. So enabling them, I think would be, इसलिए हम skills को पहले identify करेंगे, inshallah that is what the plan is, and then we will guide them on what you can do, because it is a global world. 3 साल पहले IT exports 1 billion की थी, अब 3 billion. Shortest solution to success, technology, earning, and like you said, इतनी embarrassing बात है कि internship कर रही है and you're not getting paid for it. It doesn't happen anywhere in the world. Whatever it does happen, maybe in a very minor portion, but you get paid for your work everywhere. And today a driver is earning 40,000 in Pakistan, and a teacher is earning 15,000 in the villages. Because there is an oversupply of them, but there is not an oversupply of plumbers, which are needed in Canada and Portugal and Poland, or computer operators which are needed at say Neon City, and they're saying that they have this certification which is international. So move towards that era where your decisions are well informed and well researched, rather than producing a few hundred thousand and then realizing oops, I made a mistake. Sir, my question is, I'm sure you must know about artificial intelligence. It is being used all over the world. So is there a possibility of integration of artificial intelligence in our education system? If yes, then how can we ensure कि वो ethically use हो रहा है? Because काफ़ी लोगों के ये भी concerns होते हैं कि data privacy आपका safe नहीं है. So किस तरीके से हम उसको positively use भी कर सकते हैं अपनी education में, और ये भी data वगैरह के concerns भी ना हो? उस पे I would say the right legislation, but nonetheless, because the world is moving towards AI, and you have to get there. And it makes life easy as well. But then again, like you said, it is cutting out in a few 100,000 jobs in some sectors. You have to keep in view. पुराने ज़माने में, since you're associated with that, we used to see BBC and the helicopter and the guy with the camera. Now drone has put them all out of work. And it is maybe 1,000 times cheaper also. So technology can do wonders, make life easy. But then again, cut out on a few jobs. You have to be very careful and cautious in where you allow it. But I think in responsible innovation and responsible AI is good for you. So we will utilize AI, because let's say we were working on an application
एक बच्चा FA जो पढ़ रहा है तो वो कहाँ 8 सब्जेक्ट्स में फंस रहा है, तो जो वहाँ फंस रहा है, so the app will monitor through AI कि ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पे आके क्रैक कर रहा है, ये एसे राइटिंग के ऊपर आके मार खा रहा है, वो जिसकी टाइपिंग स्पीड परफेक्ट है, वोकैबुलरी ठीक है, सेंटेंसेस ठीक है, सीक्वेंस ठीक नहीं है, या ये साइंस में मार खा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा. And then when they keep trying, they'll know they're at 45%, now they're at 54, now they're at 65, now they're at 75. So they keep getting there, and the app keeps telling them on where they're getting stuck. But this is again a model in a few thousand. We're talking about dealing with a few million kids in Punjab. So we are taking the right steps, but I do feel that 76 साल में जो गुनाह हुए हैं वो सारे एक साल में तो ठीक नहीं है. तो इसलिए we are being cautious because this taxpayers money honestly working towards models based on learning outcomes ताकि गलतियां कम हो और engagement maximum ताकि फैसला सही. हमारे साथ मौजूद थे एजुकेशन मिनिस्टर राणा साहब, और इन्होंने काफ़ी तफसीलन हमें बताया, आगाह किया कि किस तरह से न्यू गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लाना चाह रही है हमारे एजुकेशन सेक्टर पे, और किस तरह से वो काम कर रहे हैं. और हमारी पैनल डिस्कशंस में हमारी एमफिल क्लास मौजूद थी मेरी, और सब ने अपना पार्टिसिपेट किया. सो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद उसामा अमजद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.